guys. Welcome to MSCJ MacDub, your one-stop podcast for health, finance, and everything under the one sun. In today's episode, we will discuss about finance. India, with its growing technological bridge in every sector, is blooming its economy. How these big giants, big brands handle their finance, how innovations like AI had made work easy and future of India as largest economy. Everything will be discussed in this episode. I am your host Shantanu and our today's guest is Mr. Shankar Gaikwad, who is financial expert with his great experience. So let's begin. So welcome Shankar sir. Welcome to MSCJ MacDub, your one-stop podcast for health, finance and everything. So sir, finance related, my first question is to you is, working in a large corporation like Jio, what do you notice about how finance is managed differently in big companies compared to smaller setups? Actually, working in a large corporation like Jio, I have observed that financial management tends to be more structured and process driven compared to similar setups. There are clearly defined roles, Okay. standardized reporting systems, and strong compliance frameworks, which helps manage risk and ensure accountability at scale. In contrast, smaller setups often have more agility and quicker decision-making process, as the finance team is closer to day-to-day operations and leadership. While they may have favor normal process, they tend to be more flexible and adaptive. So both environment offer valuable perspectives in large organization. I have gained a deeper appreciation for strategic planning Okay. and cross functional budgetings Okay. and regulatory alignments. At the same time, I value the entrepreneurial mindset and resource optimization that smaller firms often demonstrate. Understanding both sides help build a well-rounded financial perspectives. Okay. So my next question is to you is like, do you feel big corporates play a role in shaping India's move towards a cashless economy, और कैश अभी भी इम्पोर्टेंट है आपके हिसाब से? Yes, actually कैसा है कि ये जो बिग कॉर्पोरेट्स है, Okay. ये मार्केट के लिए सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं. अब जैसे कि देखते हैं कि इंडिया को जो डिजिटल बनाया है, जब से जियो मार्केट में आया है, तब से सबको मतलब एक जो जो छोटे से छोटे विलेज से लेकर बड़े शहरों तक जो भी है, ये जो जब से पहुंचा है तब से अच्छे से कनेक्टिविटी मिल रही है. Okay. और आज के डेट पे 500 मिलियंस जो है, तो वो कस्टमर हमारे पास जुड़े हुए हैं ऑलरेडी. Okay. तो जो डिजिटल इंडिया के लिए ना बहुत ही अच्छा काम कर रहा है. वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंपनी आप इसको बोल सकते हैं. प्राइवेट बेस्ड. हाँ, प्राइवेट बेस्ड. ये सबको ऑल वेल नोन है. वैसे ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू लाइक, एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, as AI has entered in this working sector, so what's your take on it? Is there any future risk for management due to this AI? मतलब कोई AI से रिस्क हो सकता है कंपनी में? बेसिकली AI इज गुड फॉर जो भी अच्छा कर रहे हैं उसके लिए अच्छा है. और उसके ड्रॉबैक्स भी है. जैसे कि आप कुछ अच्छा उसमें एडिटिंग कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा काम करेगा. कुछ ऐसे मतलब देखा जाए तो कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं कि जो उसका मिसयूज भी कर सकते हैं एनी टाइम. तो जैसे कि एक साइड में अच्छा है, दूसरे साइड में उसका बुरा भी इम्पैक्ट अपन को आ सकता है. तो लेकिन ये हो सकता है कि इन नियरेस्ट फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के जॉब्स वगैरह भी कम हो सकते हैं, क्योंकि वो ऑटो प्रोसेस है सारी चीज़ें. आप अगर जैसे कि चैट जीपीटी में डालते हैं तो वो सारी चीज़ें आपको एट द सेम टाइम एक प्रेस पे सब कुछ चीज़ें मिलती है आपको. ओके. और ये AI से कुछ फाइनेंशियल रिस्क होता है लाइक कंपनी में कुछ इफ डिफिकल्टी? नहीं, कैसा है कि अगेन AI खुद से कुछ नहीं करता. ओके. उसके लिए कमांड देने वाले हम ही लोग हैं. सो जो कमांड देंगे तो वैसे वहाँ से आइडियाज़ मिलेगी और उसी बेस पे
आदमी ही एक आदमी को ठगा सकता है, बाकी कोई रिस्क नहीं है वैसे देखा जाए तो। मतलब किसी को ब्लैकमेलिंग करना, कुछ मिसबिहेव करना, ये उसी से स्टार्ट होता है। मतलब वो अल्टीमेटली क्या है कि एआई खुद का माइंड नहीं यूज करेगा, उसके लिए आप जो कमांड देंगे वो आपको रिटर्न में दे देगा। तो बस यही है, मतलब एआई का ड्रॉबैक भी है और अच्छा भी उतना ही बेनिफिट भी है। बेनिफिट। Okay. Sir, my next question is like Jio itself has been associated with making digital access more affordable, especially गाँव में या villages में बहुत affordable internet produce करता है Jio. Yeah. And do you think affordable internet has also boosted India's financial growth? Yes. I would like to say Jio has indeed played transformative role in making digital access across the India more affordable and whispered across India. Okay. Affordable internet has been a crucial enabler in boosting India's financial growth by connecting millions of people to digital services, be it banking, payments, e-commerces or entrepreneurship. So this increased connectivity has empowered individuals and business alike, driven greater financial inclusions and opening up new economic opportunities. While affordable internet is key pieces of the puzzle, it works best alongside improvements in digital literacy, infrastructure and supportive policies to create a truly inclusive growth environment. Okay. हाँ, लाइक सर जियो जब आया था, लाइक मार्केट में फर्स्ट टाइम आया था, तब उसके कॉम्पिटिटर्स लाइक एयरटेल एंड आइडिया बेसिकली थे, जो कि इंटरनेट पहले बहुत महंगे बेचा करते थे। लाइक इट वाज लाइक 20 रुपीज़ पर MB, लाइक 50 रुपीज़ पर 20 MB ऐसा। बट जब से जियो ने मार्केट में आया है तो रेट इनका भी एक्चुअली इनको कम करना पड़ा ड्यू टू जियो। राइट। So उसका कैसे एक्चुअली कैसा है कि जो एक एक बड़े स्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं आज के डेट पे, और ये मतलब कोई भी नेटवर्क ऐसे ही तुरंत खड़ा नहीं होता, उसके पीछे बहुत सारी मेहनतें लगती है और बहुत सारा अलग अलग डिपार्टमेंट्स उसके ऊपर काम करता है, और उसके बाद जाके ये नेटवर्क खड़ा होता है। Okay. तो इन्होंने जो एक्सपांशन किया जियो ने, तो ये एकदम बिग माइंडसेट से किया हुआ है, और ये पैन इंडिया सब जगह पे कनेक्टिविटी। आज के डेट पे आप विलेज पे जाओगे जहाँ पे नेटवर्क नहीं था, तो वहाँ पे भी नेटवर्क है, वहाँ पे भी एंड्रॉयड फोन सबके पास अभी आजकल दिख रहे हैं। तो ये जब से जो मार्केट में आया है तभी ये पॉसिबल हुआ है। जैसे कि आपने देखा होगा कोविड सीजन में, तो जो बच्चे थे जिनको पढ़ाई घर से करनी थी, अगर जियो नहीं होता तो ये हो सकता है पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जो रेट्स थे एज कम्पेयर टू अदर ऑपरेटर्स, तो इनके रेट्स बहुत ही चीपर थे और उस अफोर्डेबल थे। तो उसके वजह से जियो का एक अच्छा मतलब बेनिफिट सबको हुआ एक कोविड सिचुएशन में, जो कि वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, जो बच्चे घर से पढ़ाई कर रहे थे, उन सब के लिए अफोर्डेबल वाईफाई था, इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉपर थी, तो उसके वजह से सब कुछ प्रॉपर मतलब चल गया उस टाइम पे 2 साल में। अच्छा, ओके। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Sir, looking at global finance, where does India stand now, and how do corporates help India to stay competitive? Basically, my journey from the beginning until now has been a mix of learning, Okay. challenges, and growth. Okay. Every step taught me valuable lessons. Okay. So, whether it was about perseverance, adapting to change, or the importance of continuous learning, I have been fortunate to work with great teams and mentors who shaped my perspective along the way. Okay. 6th question. Okay. Yes. If I could give advice to my younger self, especially when starting out, it would be to stay curious and open-minded. Okay. Embrace failures and opportunities to learn, and never understanding the power of patience and persistence. Building strong relationship and focusing on integrity also make a lasting differences. Ultimately, success is a much about mindset, and it is about skill. So, nurturing both is essential. Okay. सर, इसी से जुड़ा हुआ लाइक क्वेश्चन मैं करना चाहता हूँ, लाइक
आप शुरुआत से फाइनेंस में थे या आप किसी दूसरे? हाँ, मैं जैसे कि रिलायंस जो मैं फ्रॉम 2006 में यहाँ पे Okay. जॉब कर रहा हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज में। इंडस्ट्री। तो मैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में मैंने काम किया और जो भी एक्सपीरियंस था अलग अलग था, और ये फाइनेंस का मेरा 5 इयर्स का एक्सपीरियंस जो के साथ का है। Okay. तो मैं जो के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में पहले भी काम कर चुका हूँ। Okay. तो अभी फाइनेंस का जो रोल है वो भी पिछले 5 साल से मैं संभाल रहा हूँ, और वो बेस्ट है एकदम। ओके। जो ऑलवेज मतलब कैसे कि हम लोग जो हमारे जो कस्टमर्स है, मतलब चाहे कि वो बिजनेस देने वाले कस्टमर्स हो या हम जिससे बिजनेस कर रहे हैं, तो हम सबको प्रॉपर एक साथ जुड़ा रखा हुआ है, और उसका जो भी मैनेज करना है हम लोग प्रॉपरली करते हैं। मतलब ऐसे कि कोई उनको हर्डल्स आए और हम लोग उनको रिस्पॉन्ड ना करें, ऐसी चीज़ें नहीं होती है। Moving on to our next question, seventh. Yeah. How was technology made your work easier compared to early days? टेक्नोलॉजी ने आपके लिए कितना फर्क गिरा है टेक्नोलॉजी जब से आई है? Basically technology has truly transformed the way I work compared to early days। जो पहले टेक्नोलॉजी थी तो उससे अभी जो भी कुछ सर्च करना है आपको, तो सर्च इंजन्स बहुत सारे आ गए। तो उससे क्या होता है कि आपको कोई भी डेटा चाहिए तो आप विद इन अ सेकेंड्स, विद इन अ मिनट्स आपको मिलता है। हाँ। तो एक ए बेनिफिट है। दूसरा कि आपको कुछ अलग सा कुछ आइडिया चाहिए तो आप वो भी वहाँ से ले सकते हैं। जैसे कि बिजनेस का कुछ चाहिए आपको, या फिर जैसे कि अपने बच्चे होते हैं उनके लिए कुछ पढ़ाई का कुछ स्टडी मटेरियल चाहिए, तो वो इजीली अवेलेबल है इंटरनेट पे आज के डेट पे। तो उसका बेनिफिट मुझे लगता है कि सबको ही है। और जैसे कि एक बेनिफिट है तो उसका दूसरा है कि उसका ड्रॉबैक भी है। तो कुछ लोग जो अपने माइंडसेट पे है कि अपन क्या उससे लेना चाहते हैं, तो वो डिपेंड करता है अपने ऊपर। तो ये बेसिकली टेक्नोलॉजी का एक बेस्ट भी अपन बोल सकते हैं, और उसका बैड इम्पैक्ट भी कुछ है चीज़ें जो अपन उसको इनपुट देंगे और आउटपुट देगा अपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक एट क्वेश्चन, difference between mindset of your generation people and current generation regarding financial savings, because आजकल के जो youth है वो spend more money on gadgets like an expensive lifestyle, like and what's your view on it? बेसिकली हम जब से मतलब ग्रो हुए तब से ऐसे था कि अगर आप 100 रुपये कमा रहे हैं तो उसमें से आपको 20-30% खर्चे करने हैं, बाकी आपको सेविंग करना है नियरेस्ट फ्यूचर के लिए, कुछ लॉन्ग टर्म व्यूज़ के लिए, या फिर कुछ आपके जैसे कि हॉस्पिटल से जो कोई भी खर्चे ऑल ऑफ सडन आ सकते हैं उस चीज़ों के लिए। लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है वो क्या कर रही है कि जो ऑनलाइन आपको जो भी चीज़ें ना एकदम चुटकी पे मिलती है आपको। तो जैसे कि ये जो सेल्स चालू रहते हैं तो सबसे ज़्यादा उसमें स्पेंड वो लोग करते हैं। तो उनको जो युवा पीढ़ी है उनको सोचने की ज़रूरत है कि अपन नियरेस्ट अपने फ्यूचर के लिए कुछ बचा के रखें। ऐसे नहीं कि आपके पास पैसे हो या फिर ना भी हो, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि अपने फ्रेंड से कुछ लेंगे कार्ड्स वगैरह, तो उससे बाई परचेस करेंगे। तो उससे क्या होता है कि आपका जो फाइनेंशियल जो भी बैकग्राउंड चाहिए प्रॉपर फ्यूचर के लिए वो सही से नहीं होता है, तो वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं रहते फिर। तो उनको इन फ्यूचर दिक्कत हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें अगर कैसे है कि कुछ भी रुपए आप कमा रहे हैं तो उसमें से कुछ सर्टेन अमाउंट सेविंग, तो उसमें भी अलग अलग सेविंग है, लॉन्ग टर्म सेविंग, शॉर्ट टर्म सेविंग, बहुत सारे अलग अलग स्कीम्स है, जैसे SIPs है, PPFs है, आपके रिकरिंग डिपॉजिट्स है, FDs है। तो इस सारी चीज़ों में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। कुछ जो शेयर्स है, अच्छे कंपनीज का शेयर्स, इक्विटी शेयर्स बोलते हैं अपन, तो इसमें भी इन्वेस्ट करना मैं सजेस्ट करूँगा। और ये मैं बोलूँगा कि आज आपके पॉकेट मनी अगर है, यूथ को अगर पॉकेट मनी मिल रहा है तो उसमें से भी कुछ अमाउंट आप अभी से स्टार्ट करो, सो दैट आपको वो हैबिट रहेगी और नियरेस्ट फ्यूचर में आपका अच्छा फ्यूचर बन सकता है। जो कोई भी वेल्थ ऐसे एक दिन में नहीं होती है। आप 1 रुपये से स्टार्ट करोगे तो वो 100 रुपये तब बनेगा जाके। तो अगर अपन सोचेंगे कि मैं कुछ टाइम के बाद करूँगा, थोड़ा टाइम जाना चाहिए, तो ऐसे कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो अपन लास्ट तक सोचते रहेंगे और कुछ भी अपने एंड ऑफ दी जो है
कि अपने पास कुछ नहीं रहेगा फिर। तो ये बच्चों को या फिर युवा पीढ़ी को सोचना जरूरी है कि आज के डेट से ही स्टार्ट करेंगे अभी से तो कुछ पैसा बचा सकते हैं। सर जॉइंटली क्वेश्चन है इससे रिलेटेड मैं आपसे पूछना चाहता हूँ हाँ। कि लाइक शेयर मार्केट जो है इंडिया का, लाइक इंडिया के जो बहुत से जो यूथ्स है, इंडिया ही ऐसा नेशन है जहाँ पे कंपेरेटिवली टू अदर नेशन जहाँ पे शेयर मार्केट में बहुत कम यूथ्स इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनको शेयर मार्केट का पता नहीं रहता। सो इसके बारे में आप बेसिकली क्या है कि शेयर मार्केट एक बोलते हैं लोग कि ये जुआ है, इसके पास आप मत जाओ, ऐसा सारी चीजें। लेकिन आप अगर प्रॉपर माइंडसेट लेके और सारी चीजों का नॉलेज लेके आप उतरते हैं मार्केट में, अभी जैसे कि यूट्यूब से है अपने पास, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारा नॉलेज अवेलेबल है, तो ये सारी स्ट्रैटेजीज आपको खुद को देखना है पहले। ऐसे नहीं कि आपने कुछ पैसे लगा दिए तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल कुछ इंट्राडे करने चले गए, किसी का आपके फ्रेंड ने आपको बोला कि ये करने से इतना पैसा मिलता है, तो ऐसे कभी नहीं होता है। तो उसके लिए प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए अपने पास, और उसके लिए तुरंत जाके पैसे नहीं लगाने, स्टडी कर रहे हो पहले कि क्या हो रहा है, मार्केट कैसे अप डाउन मूवमेंट्स देता है, कब अप होता है कब डाउन होता है। इंडियन मार्केट न्यूज बेस्ड है, सेंटिमेंट जो है करंट, तो उसके ऊपर तुरंत मूवमेंट देता है कि कुछ ऑल ऑफ सडन कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हुआ या फिर कुछ और हादसे हुए तो मार्केट धड़ 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 गिर जाता है फटाफट। तो उसका ऐसा है कि तो प्रॉपर अगर गिरता है उसके लिए भी ऐसा है कि स्टॉप लॉस अपने पास काम करता है। अगर मार्केट की बात करें तो एक सर्टेन आपको इतना इतना % लॉस हो रहा है, तो आपने 100 रुपीज लगाए तो 20 रुपीज आपका लॉस हुआ है, तो आपको वो स्टॉप लॉस लगा के निकलना है। ऐसे नहीं कि आपको पकड़ के रखना, अरे नहीं अभी नहीं थोड़ी देर के बाद आएगा, बाद में आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, उसको अपन को ध्यान में लेते हुए स्टॉप लॉस इज की ऑफ द इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट के लिए। तो वो अगर आप करते हैं तो आप सक्सेसफुल इन्वेस्टर हो सकते हैं। अच्छा, ओके। मूविंग ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन, सर एनी एडवाइस टू यूथ स्पेशली फ्रॉम यू हु आर लुकिंग फॉर द सेम फील्ड, लाइक अगर किसी को फाइनेंस में आना होगा then? हाँ, बेसिकली फाइनेंस एक कैसा है कि एक बड़ा सेक्टर है। फाइनेंस सेक्टर इज इन एवरी कंपनी, ओके, सो इट्स रिक्वायर्ड फॉर बजटिंग एंड अदर ऑल थिंग्स। सो क्या है कि फाइनेंस के लिए अगर कोई यूथ को आना है और ये लॉन्ग टर्म जॉब रहेगा फाइनेंस का वगैरह, ऐसा नहीं कि कभी आपको शॉर्ट टर्म में ख़त्म हो जाएगा वगैरह। तो अगर प्रॉपर नॉलेज आपके पास है, प्रॉपर पढ़ाई के साथ आप उतर रहे हैं इस फील्ड में, जैसे कि अभी CA है, CS है, ये सारी चीज़ें करके उसके लिए हाँ नो डाउट आपको वन टाइम जो शुरुआत में बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको 100% देना पड़ेगा आपका, तो आपको 100% रिटर्न में भी मिलेगा। तो आज के डेट पे ऐसे है कि अपन जो देख रहे हैं कि अपन को फटाफट सब कुछ सारी चीजें चाहिए, लेकिन वैसे नहीं होता है। उसके लिए मेहनत रंग लाती है, बोलते हैं मेहनत, पेशेंस और ये कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। अगर आप सोचेंगे मैं थोड़ा सा काम में ही पढ़ाई करूं और मुझे अच्छे मार्क मिल जाए, ऐसा नहीं होता। तो जो भी MPSC UPSC होल्डर्स है वो 12-12, 14-14 घंटे कंटिन्यूस लगातार पढ़ाई करते रहते हैं। तो वैसे ही बेसिकली इसमें भी है कि अगर इसमें नॉलेज अच्छा लेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी अभी धीरे धीरे आगे चल रही है, जैसे AI आया उसके बाद भी और भी सारी चीज़ें और चलेगी। तो उसके लिए जो यंग यूथ है तो उनके लिए ज़रूरी है कि पढ़ाई प्रॉपर करें। ऐसे नहीं कि मैं कुछ नहीं करूंगा लेकिन मुझे मार्क्स अच्छे आने चाहिए या फिर अच्छे कंपनी में हम लोग को जॉब मिलना चाहिए, तो वैसे नहीं होता है। तो बेसिकली उनका जो मेहनत रहेगा बचपन से या फिर अभी यंग एज में, तो वही मेहनत आगे रंग ला सकती है। तो ये युवाओं के लिए मेरा एडवाइस रहेगा। ओके, सो वी हैव एंडेड विद आवर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच शंकर सर फॉर जॉइनिंग। थैंक यू। I'd get any information and to our audience also from you in the field of finance. So that's it for this episode. Meet you in the next episode of MSCJ MacDub. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you.